الحمدللہ ہمارے سندھ کے قافلے علیم عادل شیخ کی قیادت میں لاہور پہنچنا شروع ہو گئے. پہلا قافلہ الحمدللہ ہمارا پہنچ گیا ہے, باقی قافلے رستے میں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی پہنچ جائیں گے. رستے میں جب اب ہم جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے تو جگہ جگہ پر کنٹینر لگا کر, پولیس کے ناکے لگا کر ابھی سے سارے راستے روک دیے گئے ہیں. مگر خان صاحب کی کال ہے, جیل سے خان کی کال ہو اور خان کا ورکر خان سے پیار کرنے والا جلسے میں نہ آئے تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا. الحمدللہ جیسے ہمارے قافلے سنجانی پہنچے تھے, سندھ کی ساری رکاوٹوں کو توڑ کر کے عبور کر کے ہم پھر سوابی بھی پہنچے تھے, اسی طرح الحمدللہ ہم لاہور پہنچ گئے. اور یہ پنجاب والوں کے لیے ٹیسٹنگ کیسے, میرے پنجاب کے تمام پی ٹی آئی کے ٹائیگر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس جلسے کو کامیاب بنائیں اور خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے کل یہ پوری جو مویشی منڈی جہاں ہمیں جلسے کے لیے اجازت ملی یہ بھر دیں تاکہ دکھا دیں کہ خان کی کال پر پورا پنجاب آ نکلا ہے. الحمدللہ اس ٹائم ہم لوگ جلسہ گاہ کی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں کی حکومت پنجاب کی طرف سے NOC دی گئی ہے. ہم جناب اپنے سندھ کے صدر علیم عادل شیخ کی قیادت میں سندھ کا پورا قافلہ اور کراچی کا قافلہ یہاں پہ پہنچا ہے. جس طرح رکاوٹیں سوابی پہ لگائی تھی, سنجانی میں لگائی تھی, لیکن ہم اس کو توڑ کے وہاں تک پہنچے. اسی طرح لاہور میں بھی آج ہم نے دیکھا رکاوٹیں لگائی گئی, لیکن الحمدللہ خان صاحب کے ٹائیگر ہیں. خان صاحب کے ٹائیگر کسی بھی طرح کل جلسہ گاہ پہ پہنچیں گے اور بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے اور اس کو تاریخی جلسہ بنائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جیسا کہ سندھ سے ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں, بالکل انہوں نے شہر سے ہٹ کے جگہ دی ہے, جنگل کے اندر دی ہے, لیکن لاہور نے کل ثابت کرنا ہے کہ انشاءاللہ نکلنا ہے اور یہ رکاوٹیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. سوابی کے اندر ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ, اسلام آباد کے اندر پہنچے ہیں. لاہوریوں کل آپ نے نکلنا ہے انشاءاللہ اور اس جگہ کو بھی پورا بھرنا ہے اللہ کے حکم سے آپ سب نے. اور آپ سب سے امید ہے انشاءاللہ پنجاب والوں سے کہ آپ سب یہاں پہنچیں گے. بالکل جلسہ گاہ صحیح نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو پھر بھی بھرنا ہے انشاءاللہ. یہ جیسے یہ جگہ ہے اسی کو سٹیج بنائیں گے اور انشاءاللہ یہیں پہ جلسہ کریں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ خان نے جیل سے پیغام دیا ہے, تو کل لاہور والوں, آپ اور اطراف کے پنجاب کے شہروں سے زیادہ لوگ آئیں اور اس جلسے کو کامیاب کریں اور یہ پیغام دیں کہ آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں لیکن ہم جو ہے اس ظلم اب سہتے رہیں گے, اپنی راہ پہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ. اس کے علاوہ جگہ بہت کھلی ہے, 50,000 خان کا سچا اچھا یہ آج کا جلسہ. السلام علیکم. سندھ زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. السلام علیکم. ویلکم ٹو پنجاب سر. ماشاء اللہ الحمدللہ. تو آپ بتائیں خیریت سے ابھی پہنچے شیخ صاحب کو سلام کروں. آپ اور ہمارے اس طریقے سے آپ ماشاء حلیم بھائی السلام علیکم. کیا ہم تو پنجاب سے ہیں لیکن کیا بات ہے.
इस वक्त 1:50 हो रहे हैं। हम इस वक्त जलसागाह के ऊपर रिंग रोड पर मौजूद हैं। अभी तक सामान अलाउ नहीं किया गया है, सामान नहीं आया है, लेकिन इंशाअल्लाह कोई रुकावट नहीं बनेगी। कुछ भी होगा, जलसा बहुत बड़ा होगा, और कुछ नहीं होगा तो रिंग रोड के ऊपर स्टेज बन जाएगा। और इंशाअल्लाह जो आएंगे, बाकी अलीमीन साहब भी आ रहे हैं, वो पूरी तैयारी से आ रहे हैं, तो कोई इस उसमें ना रहे। इजाजत देने के बाद शरारत की जाएगी, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। जलसा होगा और इंशाल्लाह जबरदस्त होगा। हमारे सारे साथी माशाल्लाह। मैं देश एक बात कहना चाहता हूँ कि जब दूध दे दिया तो महंगी ना करो, जब इजाजत देती है तो गंद ना करो। आप समझते हो कि कंटेनर हमारा रास्ता रोक लेंगे, ये नामुमकिन है। हमारा कप्तान बुलाए और खिलाड़ी ना आए, हो ही नहीं सकता। बेहतर ये है कि आप रास्ता खोलें, हमारा सामान आने दें। देखिए जी, इस वक्त हम जलसागाह में लाहौर में पहुंच चुके हैं और सूरत हाल ये है कि ये रिंग रोड है। रिंग रोड के ऊपर से तो हम जहाँ देख सकते हैं, लेकिन नीचे सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं। इस वक्त यहाँ हमारे कंटेनर्स को, जिसमें सामान है, जिसमें तमाम चीजें आने नहीं दिया जा रहा। ग्राउंड बहुत बड़ा है, रास्ते इन्होंने सारे बंद किए हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई रास्ता रुक नहीं सकेगा। और ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ, अभी इस वक्त ही माशाअल्लाह बड़ी तादाद आ चुकी है और इंशाअल्लाह कल भरपूर टाइम मैं रिंग रोड पे मौजूद हूँ। मेरे इस साइड पे डिफेंस है, जो लाहौर के पास से जितनी ट्रैफिक आएगी मोटरवे से वो रिंग रोड से इधर से आएगी। मेरे इस साइड पे कैरियर टाउन है और बिल्कुल पीछे जलसागाह है। ये मवेशी मंडी है। इससे जो अगला इंटरचेंज है वो काछा इंटरचेंज है, काना काछा इंटरचेंज है। उससे अगला इंटरचेंज लेक सिटी का है। आपने इससे अगले इंटरचेंज जो काना काछा का इंटरचेंज है, उससे उतर के जब आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आप इस मवेशी मंडी पे आ जाएंगे। ये जलसागाह है। कल 1 बजे पता लगे पूरे पाकिस्तान को कि लाहौर ने तारीख बना दी है। जो है वो इस वक्त एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम दोनों इस वक्त हालत जिहाद में, क्योंकि हम हक और बातिल की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त जो है गासिबों का कब्जा है, फिरौनों का कब्जा है हमारे मुल्क पर, लेकिन हम इस पे जदोजहद में शामिल हैं और बातिल और हक की जंग में हम सब टीम वर्क की तरह चल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं लाहौर जलसे में शरीक होने, क्योंकि ये जो है कि हमारे खान को निकालने के लिए, इमरान खान को जो कि पाबंद सलासल हैं, ये फिरौनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हम पुरअमन लोग हैं, मैं फिर दोहराती हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं और जलसे में शरीक होना आइन और कानून के लिहाज से हमारा हक है। तो मैं ये समझती हूँ कि अवाम जिस तरीके से भरपूर तरीके से सर लाहौर का रुख किए हुए, हम लोग भी निकल रहे हैं। और मैं सिंध विमेन विंग को खराज तहसीन पेश करती हूँ, तमाम डिवीजन्स को, कि सब इसका हिस्सा बन रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। मैं ये कहती हूँ कि नूर अंधेरे को चीर कर नूर बाहर आएगा, अंधेरे को चीर के नूर बाहर आएगा। अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। सो इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है वो हमारा मुकद्दर होगी। अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब, आप बताइएगा कि एग्जैक्ट ये जलसागाह किस जगह पे है, इसका रूट वगैरह बता दें लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। तमाम रास्तों के ऊपर हम आए और हमने कोशिश की कि किसी न किसी तरह से हम पहुंच सके। हमें खुद मोटरसाइकिलों के ऊपर यहाँ पर पहुंचना पड़ा, पैदल आना पड़ा। 2.5 से 3 किलोमीटर जिस जगह इन्होंने कंटेनर रखा है वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इतना रास्ता है मुसाफिर का। तो इस वक्त जो रोड खुला है ना, वो है रिंग रोड। हम रिंग रोड के ऊपर खड़े हैं। ये रिंग रोड है। यहाँ अगर मोटरवे से उधर से आए या आप इस साइड से आए, जिस साइड से भी आप आते हैं, तो ये एक रोड है जो इस वक्त खुला है। आए आपको जलसागाह ले जाते हैं। जलसागाह पैदल जाने का रास्ता जो है ना, आपको यहाँ से छलांग मार के तो फिर जाना पड़ेगा। आए तो आपको प्रैक्टिस करके दिखाएं, यहाँ जाना होगा और नीचे दिखाएं जी। ये है आपको, ये जलसागाह है जी। इसको जरा जूम करें। हमारा ऑफिशियल पर सबको देने का मकसद ये है कि तमाम लोग यहाँ से गाइड हों और
ये पार्किंग जो है ना, पार्किंग देखें ओवरऑल अगर जलसा गाह देखें तो हमें यहाँ पर कंटेनर या कोई चीज लाने की जरूरत, लेकिन आवाम बहुत आ रही है। आप निकलें, इस जलसा ये पुर हो जाएगा। और अगर कहीं पर आप देखें कहीं किसी रूट पर फंस जाए तो उससे पैदल हो जाए। यहाँ देखें आप, ये ही पार्किंग बनेगी, कितनी लाइन लगेगी। अच्छा, स्टेज के बारे में थोड़ा सा बता दें कि स्टेज क्या इधर रिंग रोड के ऊपर बनेगा और पब्लिक जो है वो नीचे खड़ी होगी, या स्टेज अलग से कोई कंटेनर वगैरह लाएंगे? देखें इसके लिए ना मैं आपको ये कहूँ कि आखिरी में जुमला ऐड करना चाहता हूँ। आखिरी जुमला ये है कि आपने जो आना है ना, आने का जो तरीका है ये इस वक्त आपको नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है सुबह ये भी बंद हो। लेकिन वाज़ेह क्लियर, जितनी भी आप मुसाफिर दूर से इनको रोकते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 किलोमीटर दूर की मुसाफिर होगी। इस जगह की पिन लोकेशन हम आपको भेज रहे हैं। आपने इस पिन लोकेशन, आपने गूगल मैप जो है वो डाउनलोड करना है, उसके ऊपर पिन लोकेशन लगानी है, नेविगेशन लगाना है, रूट लगाना है, वो आपको यहाँ ले आएगा। आप यहाँ पहुंचे, हर सूरत पहुंचे। कप्तान ने आपको पुकारा है तो फिर क्यों नहीं आप आएंगे, इंशाल्लाह आप आएंगे। थैंक यू। देखिए जी, इस वक्त हम यहाँ जलसा गाह पहुंच चुके हैं। हमारा सिंध से इस दफा हमने प्लान भी लिया हुआ था, क्योंकि पिछली दफा जो हमारे साथ हुआ था उसका हमारे पास इलाज ये था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पहुंचे, तो मुख्तलिफ अंदाज से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। माशाल्लाह हमारे सिंध के, हमारी टीमें, सिंध के कारकुन, सिंध के लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। बात यह है कि इस वक्त संजानी की तरह एक और इन्होंने कुएं में धकेलना चाहा है, लेकिन इंशाअल्लाह कल मुझे पता है कि लाहौर भी निकलेगा, पाकिस्तान भी निकलेगा और ये तमाम रुकावटें तोड़ दी जाएंगी। रास्ते वास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं, सामान नहीं आने दे रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि कल कोई कंटेनर, कोई चीज हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं सलाम पेश करता हूं और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह इस दफा भी कराची जब निकला है, उसके बाद पूरा सिंध निकला है, तो इंशाअल्लाह हम इस काफिले में शामिल होंगे और इंशाअल्लाह इसको कल इंशाअल्लाह जलसे को सबने मिलकर कामयाब कराना है। लाहौर आपने पीछे नहीं रहना, इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि इस दफा पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि खान ने जेल से पैगाम दिया है, तो कल लाहौर वालों, आप और इतराफ के पंजाब के शहरों से ज्यादा लोग आएं और इस जलसे को कामयाब करें और ये पैगाम दें कि आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, लेकिन हम जो है इस जुल्म अब सहते रहेंगे, अपनी राह पे चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सिंध से हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, बिल्कुल उन्होंने शहर से हट के जगह दी है, जंगल के अंदर दी है, लेकिन लाहौर ने कल साबित करना है कि इंशाल्लाह निकलना है और ये रुकावटें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। सवाबी के अंदर हम पहुंचे हैं इंशाल्लाह, इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे हैं, लाहौरियों कल आपने निकलना है इंशाल्लाह और इस जगह को भी पूरा भरना है अल्लाह के हुक्म से आप सब ने। और आप सबसे उम्मीद है इंशाल्लाह पंजाब वालों से कि आप सब यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल जलसा गाह सही नहीं है, लेकिन हमने इसको फिर भी भरना है इंशाल्लाह। ये जैसे ये जगह है, इसी को स्टेज बनाएंगे और इंशाल्लाह यहीं पे जलसा करेंगे इंशाल्लाह। खान साहब का हुक्म है हमारे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग जलसा गाह की जगह पे पहुंचे हैं जहाँ की हुकूमत पंजाब की तरफ से एनओसी दी गई है। हम जनाब अपने सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की क़यादत में सिंध का पूरा काफिला और कराची का काफिला यहाँ पे पहुंचा है। जिस तरह रुकावटें सवाबी पे लगाई थी, संजानी में लगाई थी, लेकिन हम उसको तोड़ के वहां तक पहुंचे। इसी तरह लाहौर में भी आज हमने देखा रुकावटें लगाई गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के टाइगर हैं। खान साहब के टाइगर किसी भी तरह कल जलसा गाह पे पहुंचेंगे और भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और इसको तारीखी जलसा बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध के काफिले हलीम आदिल शेख की क़यादत में लाहौर पहुंचना शुरू हो गए। पहला काफिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहुंच गया है, बाकी काफिले रास्ते में और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी पहुंच जाएंगे। रास्ते में जब अब हम जलसे गाह की तरफ आ रहे थे तो जगह जगह पर कंटेनर लगाकर, पुलिस के नाके लगाकर अभी से सारे रास्ते रोक दिए गए हैं। मगर खान साहब की कॉल है, जेल से खान की कॉल हो और खान का वर्कर, खान से प्यार करने वाला जलसे में ना है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे काफिले संजानी पहुंचे थे, सिंध की सारी रुकावटों को तोड़ करके, उबूर करके हम फिर सवाबी भी पहुंचे थे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर पहुंच गए और ये पंजाब वालों के लिए टेस्टिंग केस है। मेरे पंजाब के तमाम पीटीआई के टाइगर से रिक्वेस्ट है कि वो इस जलसे को कामयाब बनाएं और खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए कल ये पूरी जो है, जो मवेशी मंडी जहां हमें जलसे के लिए इजाजत मिली, ये भर दें ताकि दिखा दें कि खान की कॉल पर पूरा पंजाब आ निकला है। जी ये जलसा गाह के रास्ते में एक कंटेनर खड़े हो चुके हैं। जलसा गाह के रास्ते में ये कौन सी जगह है जी? इम्तियाज साहब, काना काछा पे ये कंटेनर लग गए हैं। आजादी
अपने लिए निकलना है, अपने हकूक के लिए निकलना है, अपनी यकीनी आजादी के लिए निकलना है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इस एंगल में बनानी है, दूसरे एंगल में बनानी है, दूसरे एंगल में